A very good evening and good afternoon to all of you. So we were doing our chapter states of matter. In states of matter, we have to supposed to start with gas. So gas is in class 11th course. So gas is defined as any substance whose boiling point is more than room temperature. That is, room temperature is 25 degrees Celsius. So boiling point of gas is more than room temperature. For example, oxygen, nitrogen, chlorine, all are gases. Carbon dioxide, sulfur dioxide, all are gases. So gases can be of two types. One is elemental gases, other one is the molecular gases. Elemental gases, I will say that like oxygen and nitrogen, chlorine, they exist. The element exists as a in the form of gas only. Rather, oxygen can never exist as O only, but can never exist as O, but it exists in the form of O2, that is a molecular form. And nitrogen also exists in the form of N2, that is molecular form. Chlorine also exists in the form of Cl2, not as a molecule one. But we have CO2, SO2, like ammonia. These gases also, these are the gases which has more than one type of atoms in it. So we call them as a molecular gases. So there are two type of gases are there, which is made up of one element, that is monoatomic gases, and then we have diatomic gases or polyatomic gases, that is which contains more than one type of atoms. Okay. So vapor. So vapor is defined as the forced form of matter, which suppose there is water. So water at 25 degrees Celsius is a liquid, but if you heat it, it will convert into water. It will convert liquid will convert into gas. So this gaseous form, this form of water, which is gas, will not be known as gas. It is known as a vapor, like that of iodine. Iodine is liquid in state, but as we increase the temperature, it converts into vapor. So form of matter which is forcefully converted into gas at room temperature is known as vapor. Okay. Then little bit of you can say gases. There are some forces of attraction. Now there are suppose two particles, one, two, three, four, five, six. Like these particles are there. So whatever the space between these particles, this space is known as interparticle distance, and force of attraction between two particles is known as interparticle forces of attraction. Gas particles have weak force of attraction because of more space between them. Always remember, interparticle space is inversely proportional to force of attraction. जितना ज्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस होगा उतना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ठीक है. और इसी वजह से gases do not have neither definite shape and definite volume, because interparticle forces of attraction is very weak, so they have maximum fluidity, that is they have ability to flow. They exert pressure on walls. Because of the Brownian motion, they have a tendency to move here and there. So we can say that they have a tendency to move here and there. So they exerts pressure on the walls of container. Now, important point about the gas we have to learn is mass. That is mass is in gram. Moles into molecular mass. That is from the mole formula. Okay. Then volume. Volume of the gas is considered to be the volume of container in which it is filled. गैस का वॉल्यूम उसे ही मानते हैं जितना बड़ा कंटेनर है, हम उससे ही पूरा का पूरा वो फिल हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम मानेंगे. ठीक है. सपोज करो क्वेश्चन में लिखा आता है अ 2 लीटर कंटेनर कंटेन्स अमोनिया गैस इन इट. सो 2 लीटर कंटेनर की आपको वॉल्यूम दी गई है. सो कंटेनर की वॉल्यूम और गैस की वॉल्यूम एक ही होगी. कभी ऐसा नहीं होगा देयर इज अ 1 लीटर गैस कंटेन इन 5 लीटर ऑफ कंटेनर. सो 5 लीटर कंटेनर दे दिया तो उसमें वो गैस पूरी की पूरी फैल जाएगी. वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर वो 1 लीटर ही रहे. ठीक है. टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. इस बात को याद रखिए. प्रेशर. So pressure of a gas is defined as the force exerted by the gas on the walls of container. Suppose ये एक कंटेनर है, इस पे कोई भी पार्टिकल है, कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन वॉल्स के ऊपर, तो उस वॉल्स को जो फोर्स है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर. ओके.
नाउ P इज इक्वल टू H D and G. H प्रेशर क्या होता है? H इज हाइट मल्टीप्लाई बाई रो डेंसिटी एंड देन G. G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये उस चीज पे करता है. इज दैट पॉइंट क्लियर? प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच. इस प्रेशर को फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए. याद है आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला किया था, mgh, मास इनटू हाइट इनटू एक्सटेंशन इनटू ग्रेविटी. सेम इसी तरीके से प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास आता है रो जी एच. रो का मतलब है डेंसिटी, so it is the density into height into acceleration into gravity आपके पास आ जाती है यहाँ पे. ठीक है, चलिए जी, अब आ जाइए यहाँ पे measurement of gases. Gas is measured in terms of two things, pressure and volume. जिस तरीके से कोई लिक्विड होता है, अगर हमें कोई लिक्विड लेके आना है, जैसे मान लो हमें पेट्रोल भरवाना है, तो हम लोग बोलते हैं भैया 5 लीटर भर दो. पेट्रोल को तो हम बोलते नहीं 5 लीटर भर दो, हम बोलते हैं 500 का भर दो या 600 का भर दो या 1000 का भर दो. पर अगर कायदे से देखा जाए तो इट इज 5 लीटर, 2 लीटर, 6 लीटर पेट्रोल व्हाट वी वांट टू आस्क. अगर हम दूध लेने जाते हैं मार्केट में तो 2 लीटर, 1 लीटर, 3 लीटर, 500 ml इस तरीके से हम लोग लेते हैं लिक्विड. बट अगर हम गैस के बारे में बात करें, गैस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम. अगर आप कभी सीएनजी भरवाओ तो सीएनजी में भरवाना देखना, सीएनजी में प्रेशर के हिसाब से गैस भरी जाती है. एक प्रेशर लिखा आता है प्रेशर, और उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम चलता रहता है. ठीक है, अगर प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम कम भरी जाती है उसके अंदर, अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो ज्यादा गैस आ जाती है. कभी आप सीएनजी वगैरह अगर पंप पे सीएनजी भरवाएं तो आपने इस बात का ध्यान रखना, आप उसमें देखना प्रेशर कम या ज्यादा होता है. उनके साइड में एक बार एक लगा होता है इस तरीके से, प्रेशर गेज होता है, उसमें आप देख सकते हो प्रेशर कौन सा है और उसमें आपका ये वॉल्यूम कितनी है. तो जो मीटर के अंदर आती है, मीटर के अंदर आती है हमारे पास वॉल्यूम. वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग जो है पेमेंट करते हैं. ठीक है, और प्रेशर अगर कम या ज्यादा होता है तो उसके वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ता है. वो किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है वही हम लोग इस चैप्टर में आके पढ़ेंगे. तो प्रेशर हम लोग बात कर चुके हैं. फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैसेस और वेपर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज नोन एज प्रेशर. एंड वॉल्यूम मींस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर. कोई मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे बोलते हैं वॉल्यूम. जैसे कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा, और कोई बहुत बड़ा है मोटा ताजा लड़का है तो वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, अब आ जाइए प्रेशर. यूनिट इज पास्कल, एटमॉस्फेयर एंड टॉर. प्रेशर के लिए पास्कल, एटमॉस्फेयर और टॉर ये 3 यूनिट आती है हमारे पास. मेनली हम लोग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल इसको यूज करते हैं. ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर क्यूब. मीटर क्यूब हो गया, या लीटर भी यूज करा जाता है वॉल्यूम के लिए. लीटर क्यूब और मीटर क्यूब ये दो वॉल्यूम का यूनिट्स होती है हमारे पास. थर्ड है वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड मास. एक्चुअल में डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ से वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे तो वॉल्यूम विल बी डिफाइंड एज नॉट प्रोडक्ट ऑफ, वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, वॉल्यूम आ जाएगा ऊपर मास अपॉन डेंसिटी. तो ये गलत लिखा हुआ डेंसिटी एंड मास, ये चीज आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए. इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड मास, इट इज मास डिवाइड बाय डेंसिटी इज नोन एज वॉल्यूम. ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको ठीक कर लीजिए इस पॉइंट को. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी. अब आते हैं प्रेशर के बारे में बात करते हैं. सो प्रेशर इज डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द इन विच मास इज फ्लोइंग. अब प्रेशर से क्या मतलब है? एक जगह पे मैंने बोला हाई प्रेशर है, एक जगह पे बोला लो प्रेशर है. सो प्रेशर एक तरीके से काम करता है एक डिफरेंस का, ग्रेडियंट का. ग्रेडियंट मींस डिफरेंट. और इस प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से ही हम किसी गैस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. या फिर आप बोल सकते हो कि एक गैस दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है. और प्रेशर से हमें डायरेक्शन ऑफ मास फ्लो के बारे में पता लगता है. सपोज करो, मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास 1 लीटर गैस है और इसका प्रेशर मेरे पास 2 पास्कल या 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है. ठीक है, मैंने इस पाइप के थ्रू मुझे इस कंटेनर में गैस फिट करनी है. इसका 5 लीटर वॉल्यूम है. ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर मैंने क्रिएट कर रखा है 1 एटमॉस्फेयर, या कुछ भी प्रेशर नहीं है. तो गैस सारी की सारी उठ के फटाफट यहाँ पे चली जाएगी. तो इसका मतलब क्या है? मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मास के बारे में पता लग गया. मास कौन? गैस का मास. गैस का मास किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो मुझे इसके बारे में यहाँ पे पता लग गई बात. ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है एटमॉस्फेयर कंसिस्ट लार्जली ऑफ गैसेस एंड वेपर एंड एक्सर्ट्स व्हाट वी कॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अस.
जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कुछ गैसेस भी हैं, कुछ वेपर फॉर्म भी है, और वो हमारे ऊपर बार बार हमें टक्कर मारता है, हमें महसूस नहीं होता, बट वो हमें बार बार टक्कर मारता है। जब जैसे मान लो कभी बहुत तेज आंधी चल रही हो और जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में बाइक चलाओ तो आपको एक झटका सा महसूस होता है, एक लगता है कि भाई आपको आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या कभी अगर आप ट्यूबवेल वगैरह पे आप जाओ, ट्यूबवेल वगैरह पे अगर ना हो या बहुत तेज प्रेशर से पानी आ रहा है, उसमें आप हाथ डाल के देखो तो आपको एकदम बहुत तेज से प्रेशर लगता है, सेम ऐसे उसे बोलेंगे ना वाटर प्रेशर। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एक बॉडी के ऊपर डालता है उसे बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विथ हाइट एज द वाटर प्रेशर वेरीज विथ डेप्थ। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम होता जाता है, ठीक है। और वैसे वैसे जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, एक डेप्थ में जाएंगे, तो वाटर प्रेशर हमारा बढ़ता जाएगा। Is that part clear? So atmospheric pressure decreases with height, water pressure increases with depth. इस बात को याद रखिए। फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे, प्रेशर मेजरमेंट कैन बी मेड ऑन फ्लूइड स्टेट, लिक्विड एंड गैसेस। प्रेशर को हम लोग प्रेशर के थ्रू जो है लिक्विड्स को और गैसेस दोनों को ही मेजर कर सकते हैं। वी कैन यूज प्रेशर टू मेजर बोथ लिक्विड एंड गैसेस एज वेल। अब सबसे बड़ी बात आती है वेपर प्रेशर। ये जो प्रेशर की बात करी, ये मैंने बात करी है आउटसाइड प्रेशर, कि कोई मेरे पास कंटेनर है गैस का, वो कंटेनर कितना प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। एक तो वो बात हुई, और एक चीज क्या हो गई, अगर उस कंटेनर के अंदर मेरे पास लिक्विड पड़ा है या कोई गैस पार्टिकल पड़े हैं, वो कितना प्रेशर लगाएंगे, वो दोनों चीजें अलग अलग बात हो जाएगी। अगर सपोज करो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है, ठीक है जी। अब पानी रखा है, ये मान लो सपोज इतना कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, और मैंने इसको कर दिया क्लोज कंटेनर, इसको मैंने लिड से ढक्कन रख दिया। नाउ आई एम हीटिंग इट। इसको हीट करेंगे, जैसे ही इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब वेपर बनेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद हो सकता है दोबारा नीचे भी आए। जब ये चीज नीचे आएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत वेपर कंडेंस हो जाए, लिक्विड बन के लिक्विड ड्रॉपलेट आए, तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेपर फॉर्मेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन, लिक्विड फॉर्मेशन अगेन। तो उस पॉइंट पे या उससे पहले भी कुछ वेपर पार्टिकल ऐसे होंगे जो इस टॉप लेयर के ऊपर बार बार फोर्स क्रिएट कर रहे होंगे। There are some vapors which are creating some force on the top layer of the liquid. वो जो फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, वो जो बार बार प्रेशर लगा रहे हैं वाटर वेपर उस टॉप लेयर के ऊपर, उसे बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। इज दैट पार्ट क्लियर? So pressure exerted by the vapor on liquid surface is known as vapor pressure. यहां तक कोई डाउट है किसी को? बानो, भूमिका, ईशा, इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके जी। नाउ यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से इसको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला चूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट यूनिट से। इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स का बहुत तगड़ा खेल है, स्पेशली आपके जेईई और नीट के अंदर यूनिट्स को बहुत ध्यान रखना है। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर का मतलब क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल अंकल। अब पास्कल बहुत ही छोटी सी यूनिट होती है, तो इसलिए हम पास्कल को यूज नहीं करते ज्यादा, ज्यादातर हमारा किलो पास्कल के पीए के नाम से यूज होती है चीजें। जैसे वॉट में था ना, फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि वॉट एक बहुत छोटी यूनिट होती है, मोस्टली वी यूज किलो वॉट। सो इन सिमिलर मैनर पास्कल इज ए वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज किलो पास्कल। तो अब पास्कल होती है। अब पास्कल के अलावा इसकी यूनिट होती है प्रेशर की, बार। किलो पास्कल मैंने आपको बता ही दिया। मेगा पास्कल, किलो पास्कल का मतलब 10 पावर 3 पास्कल हो जाएगा, मेगा पास्कल का 10 पावर 6 पास्कल, ठीक है। अब ये कन्वर्जन याद रखिए, 1 बार इज इक्वल टू 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। ये जनरली हम लोग इसको 100 किलो पास्कल के इसमें रख लेते हैं, 1 बार का मतलब होता है, ठीक है। तो इसको, इस कन्वर्जन को हमेशा याद रखिए। अब आता है प्रेशर कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एमएम और सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। एमएम ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी काफी ज्यादा यूज होती है, इस यूनिट को भी हमेशा याद रखना है।
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी। अब ये 760 mm ऑफ मरकरी, ये मतलब क्या है, ये पता क्या लगा, ये क्या चीज है। एक हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से यू शेप्ड ट्यूब होती है, ठीक है। इसके अंदर हमने मार्किंग कर दी 1 2 3 4 5 6 करके, और यहाँ पे हमने भरा मरकरी, ये इसके अंदर मरकरी फिल कर दिया। अगर यहाँ से एक प्रेशर लगाया और वो प्रेशर पे 160 सेंटीमीटर के आसपास तक पहुंच गया, एमएम तक 160 mm पहुंच गया, उस प्रेशर को बोलेंगे हम लोग 1 एटमॉस्फेयर। सो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जब लगता है तो 760 mm ऑफ मरकरी जो है राइज हो जाता है, तो उस चीज को हमने बोल दिया 1 एटमॉस्फेयर। इस तरीके से हम इस प्रेशर को मेजर करते हैं। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर और 760 mm और 760 टॉर, ये एक ही बात है। इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 760 टॉर। टॉर भी एक सीजीएस यूनिट होती है, और अगर इसको बार में कर रहा है तो 1.01325 बार है, 1.01 से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू ये 10 पावर 5 है, ये 105 नहीं है, ये 10 पावर 5 है बेटा, ये सॉरी। तो 10 पावर 5, तो 10 पावर 5 को 100 किलो न्यूटन लिख दिया हमने यहाँ पे। 1 बार इज इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल या फिर 100 किलो पास्कल, एक ही बात है यहाँ पे। इज इक्वल टू 0.013 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03 kgf। ये kgf, इसको वो मत समझना, kgf मूवी का सेकंड पार्ट है ये, कि kgf का मतलब है यहाँ पे किलोग्राम फोर्स। ये फोर्स के टर्म्स में प्रेशर को नापने की एक यूनिट होती है, किलोग्राम फोर्स, ठीक। इसको भी फिलहाल अभी भूल जाओ, इसको भी ज्यादा कोई यूज नहीं है। ये जब आप अगर किसी फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़ोगे, स्पेशली अगर आप लोग इनकी यूके के राइटर्स की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे केजीएफ, यूके नहीं सॉरी अमेरिकन राइटर्स की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे केजीएफ किलोग्राम फोर्स के बारे में बताया गया है मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे इस यूनिट को सीजीएस यूनिट में किलोग्राम फोर्स में यूज करा जाता है प्रेशर को। दे कंसिडर प्रेशर एज अ फोर्स ओनली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो यूज करते हैं। फिलहाल आपको यूज नहीं करना, आपको जो याद रखनी है, एक तो ये याद रखिए 1 एटमॉस्फेयर जिसके बराबर होता है, और दूसरा याद रखिए बार वाला कन्वर्जन, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.101 बार। तो बस ये दो कन्वर्जन आपको याद रखनी है, ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आता है कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दीज कंडीशन। सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, pressure is supposed to be 1 atmosphere, and volume occupied by the gas is 22.4 liter. So volume occupied by gas is 22.4 liter. अब आता है at STP। STP पे ही अगर प्रेशर आपका बार में दिया हुआ है तो देखिए वॉल्यूम चेंज हो गई है 22.7 लीटर, ये वॉल्यूम चेंज हो गई आपके पास, ठीक है। टेम्परेचर आपका सेम 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर आपने अगर बार में कन्वर्ट कर दिया then volume changes to 22.7। there is a minute difference between 22.4 and 22.7, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। इसके अंदर टेम्परेचर इज टेकन एज 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर है। इस प्रेशर पे वॉल्यूम जो मिलती है हमें वो 24.8 लीटर मिलती है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा फोर्थ आता है हमारे पास में एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। At normal temperature pressure conditions, temperature is taken as 20 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर को हम लोग 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास आती है 20.0 लीटर। मोस्टली 1 2 एंड 4 यही चीजें यूज होती हैं। एसएटीपी का केस बड़ा ही रेयरली यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, बट याद रखना है, नेवर नोज कौन सी चीज कब एग्जाम के अंदर आपकी आ जाए। एसटीपी को याद करते हुए, एसटीपी को यूज करते हुए हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रेशर की कंडीशन क्या दी हुई है। प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, तो आपको वॉल्यूम 22.4 लेके कैलकुलेट करना है, अदरवाइज यू हैव टू टेक 22.7 इफ प्रेशर इज गिवन इन बार, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना होगा। ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट है कोई? टेम्परेचर स्केल मैंने आपको बताया था, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। फ़ारेनहाइट को यूज हम इतना नहीं करते हैं, केल्विन एंड सेल्सियस को यूज करते हैं। केल्विन से अगर आपको जो है टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है एट 273, केल्विन से आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है -273। इस तरीके से आप कर लीजिए।
सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट से कन्वर्जन आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। 1.8 को मल्टीप्लाई करिए डिग्री सेल्सियस से, उसमें 32 ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन योर फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ तो 1.8 इंटू 100 प्लस 32, तो ये आ जाता है हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज 212। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 100 प्लस 273 विल बिकम 373 केल्विन। 373 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगेन 373 है, इसमें से 273 माइनस कर दिया, इट विल बिकम 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, तो 373 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। इन जिससे हमने यहाँ पे ये कन्वर्जन किया। सेम ऐसे ही आप लोग सेल्सियस से और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, जो याद करने वाली समरी है वो ये समरी है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनटीएससी एनएसटीएससी के अंदर डायरेक्ट आपसे इस फॉर्मूले के बारे में पूछ लिया जाता है। चांसेस रेयरेस्ट है आने के, क्योंकि ये छोटी क्लास का कंसेप्ट है, बट कभी कभी आपसे इस कंसेप्ट के बारे में पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, दैट इज अ फॉर्मूला यूज टू कन्वर्ट एनीवन। सेल्सियस से लेकर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट से केल्विन कन्वर्ट करनी है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्ट करना है, कुछ भी जो भी एक्स वाई जेड कन्वर्ट करना है आपको, यू कैन कन्वर्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। Kelvin scale is considered to be the best scale because it has no negative sign. 0 Kelvin का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस आज तक अचीव ही नहीं हो पाया। हमें नहीं पता कि 0 डिग्री या फिर -1 केल्विन -2 केल्विन टेम्परेचर कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई केल्विन स्केल नेगेटिव ही नहीं है, तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। केल्विन स्केल का मतलब क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस, विच इज वेरी हार्ड टू अचीव। -273 डिग्री सेल्सियस को अचीव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। आज तक मेरे ख्याल से मैक्सिमम 200 या फिर 100 कुछ तक ही जा पाए हैं, 200 220 तक ही जा पाए हैं मैक्सिमम, इसके नीचे नहीं जा पाए हैं अब तक। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है इसे करना, एब्सोल्यूट जीरो पे आ जाना। अब मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, काइनेटिक लॉ ऑफ गैसेस। अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है? that all the gases consist of a small molecules or atoms whose volume is negligible as compared to the volume of container. अगर मैं एक कंटेनर की बात करता हूँ, सपोज करो दिस इज अ 5 लीटर कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गैस के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिल होते हैं। तो कहने की बात ये है, जो गैसेस के पार्टिकल्स है, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एंड अगर मैं इन पार्टिकल्स को कंबाइन कर दूं, इफ दे कंबाइन टुगेदर, कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। सो कंबाइन होने के बाद वॉट एवर बी द वॉल्यूम ऑफ दीज पार्टिकल्स it will be very 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 small as compared to the volume of container. ठीक है, सपोज करो, इसको सबसे बढ़िया इसको करने है, सपोज करो एक ग्राउंड के अंदर दो फुटबॉल की टीमें खेल रही है, 11 और 11 कितने प्लेयर हो गए? 22 प्लेयर्स आर देयर। अब पूरा बड़ा ग्राउंड है, उसमें 22 प्लेयर्स एक मैच के टाइम पे पूरे इधर से उधर फैले हुए होते हैं, सो दे कवर्ड द होल ग्राउंड। बट अगर मैं उनको सबको इकट्ठा कर दूंगा, तो वो हो सकता है वो एक गोल पोस्ट के पास में सारे के सारे इकट्ठा हो सकते हैं। तो उनकी जो वॉल्यूम है, प्लेयर्स की वॉल्यूम, इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल if you compare it with the ground. In a similar manner, if you compare the exact volume of particles of gases, it is almost negligible with the comparison of the total volume occupied by them. Is that clear? So the volume is almost negligible as compared to the volume of container. Next point, there is no interparticle, you can say, forces of attraction between the gaseous particles. There is no interaction between gaseous particles. The interaction may appreciably affected under certain conditions of temperature and pressure. अब है क्या सीन इसके अंदर? ये पार्टिकल्स इतनी दूर दूर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गोलकीपर है एक टीम का, और उसी टीम का है मान लो आपका क्या कहते हैं उसे, स्ट्राइकर। अब गोलकीपर और स्ट्राइकर के बीच में कम्युनिकेशन होना तो बहुत ही मुश्किल है। गोलकीपर और स्ट्राइकर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिकॉज वो उनका डिस्टेंस इतना ज्यादा है। इन सिमिलर मैनर, जो हमारे पास में गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज सो मच हाई that there is almost negligible interaction
or you can say there is almost negligible forces of attraction between them. But during the certain conditions or affected by certain conditions, there may be some interaction. अगर होता है सारी की सारी, आपको मान लो दूसरी टीम पेनल्टी ले रही है, तो स्ट्राइकर भी आपका गोल के पास होता है, सारे के सारे प्लेयर गोल के पास आ जाते हैं. एट दैट कंडीशन गोलकीपर का और स्ट्राइकर का इंटरेक्शन हो सकता है. So that's why there can be an interaction between the gaseous particles, but it depends on some conditions of temperature and pressure. अगर मैं प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो सारे के सारे पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, और अगर मैं टेम्परेचर को जो है बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, ये दोनों चीजें होती हैं, देन the particles of gases come close to each other and there may be a chance of interaction between them. और you can interaction का मतलब ये नहीं वो आपस में बातें करेंगे, उनका हालचाल पूछ लेंगे, हाँ भाई कैसा लग रहा है तुझे इतनी दूर जाके. इंटरेक्शन से मतलब है there is some forces of attraction between them. Is that point clear? भानु, ईशा, भूमिका. अब थर्ड पॉइंट देखिए. Now gaseous particles, हमें सबसे पहली बात पता है कि भाई इनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है एंड दे आर अनअफेक्टेड बाय द ग्रेविटी. ये गैसेस पार्टिकल ग्रेविटी से अनअफेक्टेड होते हैं. तो इनके केस के अंदर ये इधर से उधर पागलों की तरह घूमते रहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट. तो रैंडम स्ट्रेट लाइन मोशन, रैंडम जिगजैग, नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, दिस इज अ जिगजैग मोशन. रैंडम जिगजैग मोशन of particles is known as Brownian motion. वो Brownian motion को you can't predict, वो कभी भी कहीं भी चला जाता है, कुछ नहीं पता होता उसका. So gaseous molecules are under continuous state of motion which is unaffected by the gravity and this motion is known as Brownian motion. और इसी मोशन की वजह से वो बार बार क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे से भी, वो एक कंटेनर की वॉल पे भी कोलाइड करते रहते हैं एंड हेंस दे क्रिएट सम प्रेशर. कभी आप लोग एक कान पर जो है एक खाली कटोरी लिए ग्लास लीजिए, उसको कान पे रखिए तो आपको एक आवाज सुनाई देती है. वो जो आवाज सुनाई दे रही है वो आपको क्या चीज है, वो आवाज इन्हीं गैसियस पार्टिकल्स की, जो एयर के पार्टिकल्स आपस में टक्कर कर रहे हैं व्हेन एवर दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, ये उसी की साउंड आपको सुनाई देती है. So due to continuous motion, collision between the gaseous particles with the wall of container occurs, and this collision with the wall of container is these collisions are responsible for the pressure exerted by the gas on the wall of container. 4 points clear. Fifth point is molecules move with a different speed. However, speed of each molecule keeps on changing as the collision occurs. So हर एक मॉलिक्यूल एक अलग 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 स्पीड पे घूमता रहता है, और जैसे ही स्पीड चेंज होती है, और जैसे ही आपका स्पीड चेंज होती है, कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद भी कुछ ना कुछ इनकी स्पीड चेंज हो सकती है. जैसे ही कोलाइड हुआ उनकी स्पीड चेंज हो गई. ठीक. 6th पॉइंट आता है, all the collisions occurring are considered to be perfectly elastic, which implies that there is no loss of energy. अब ये perfectly elastic और not non elastic collisions, ये दो टाइप के collisions होते हैं. ये आई थिंक आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे. बेसिकली ये फिजिक्स का टॉपिक आता है कोलिजन का. मोमेंटम के अंदर आप लोग कोलिजन का टॉपिक पढ़ेंगे. ये आई थिंक इन क्लास 11th में 12th में, मेरे को याद नहीं है इस टाइम पे, किसी क्लास में आप पढ़ेंगे. पर फिलहाल आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर इतना याद रखना है कि इनका जो कोलिजन होता है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस नहीं होता इसके अंदर. टक्कर खाए, चुपचाप इधर उधर चले गए, बिना लड़ाई करे, बिना एनर्जी का लॉस करे. जैसे कई बार होता है ना, किसी को देख के मन में तो आता है कि इसका सर्वर फोड़ दूं मैं, तो देखते हो सामने, बट आप उससे चुपचाप टक्कर खाते हो और अपना बैग वैग उठा के अपना चले जाते हो. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ना कुछ बोलते हो. सेम इसी तरीके से इनका कोलिजन होता है. ये आपस में आते हैं, कोलाइड करते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, दे मूव देयर ओन वे. कोलिजन करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, एनर्जी का लॉस नहीं होता. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ये 6 पॉइंट है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो उसके अंदर आपको 6 पोस्टुलेट आपको लिख देने हैं. इस पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा. ईशा, भूमिका एंड भानु, एनी डाउट? जल्दी बताइए फटाफट. ओके, कोई डाउट नहीं है. आई होप
7th पॉइंट आता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है अगर हमें, तो हम लोगों को उसका टेम्परेचर चेंज करना है, या फिर जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। So as you increase the temperature, their motion increases, their kinetic energy increases. अब आ जाते हैं, सबसे पहला रिलेशन करते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ, दैट इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब ये क्या कहती है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशन? इंपॉर्टेंट है, गैस लॉज हैं ये। सो जो गैसेज हैं दे आर गवर्न्ड बाय सम लॉज। different scientists propose that laws, Charles law, then we have Boyle's law, then we have ideal gas equation law. So different scientists propose some laws. Avogadro law is there. So first of all, we are going to study about Charles law. Charles law is a relation between temperature and volume. So Charles law का एक दूसरा नाम पड़ता है हमारे पास volume and temperature relation. So what it states, the volume occupied by any sample of gas at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature. अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो जो वॉल्यूम होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, और टेम्परेचर डाउन होता है तो वॉल्यूम विल डिक्रीज इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखा जाएगा? इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ऐसे जो कि प्रेशर को कांस्टेंटली रखते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को लगाओ, प्रेशर को कांस्टेंट रखो। अब इसका सीधे सीधे बढ़िया सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अब आप देखते हो जब हम सर्दी होती है तो सर्दी में अंदर हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग सुकड़ के सोते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हमारी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गई। और जब गर्मी होती है हम लोग फैल के चौड़ के सोते हैं, तो जैसे ही हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हो गई। आप क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज था, तो सिचुएशन ये थी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लोग अलग अलग हो गए, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लोग अलग अलग हो गए। So that is what Charles law. It states that volume is directly proportional to temperature at constant pressure. ये जो constant pressure वाली टर्म है इसको जरूर याद रखना है इसमें। अगर constant pressure नहीं होगा तो this law is not applicable. ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब V is equal to T, और इसमें कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या रखा, सॉरी, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक के कांस्टेंट आया, उस के को हमने बोल दिया चार्ल्स कांस्टेंट। चार्ल्स कांस्टेंट, यहाँ पे हम के की वैल्यू देखेंगे तो टी को हमने लेकर राइट हैंड साइड में, तो टी बाई वी बाई टी इज कांस्टेंट एंड इट इज के। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने वॉल्यूम ली 200 ml, सपोज करो वॉल्यूम इज माई 200 ml और टेम्परेचर था मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा सो देन देयर विल बी ए इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम आल्सो, पर रेशियो ऑफ टेम्परेचर टू वॉल्यूम इंक्रीमेंट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 200 बाई 100 यानी इसका जो रेशियो आएगा 200 बाई 100 यानी 2:1 का रेशियो है। सो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, किसी भी टेम्परेचर वॉल्यूम के ऊपर चले जाओ, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, इनका रेशियो हमेशा 2:1 का ही आएगा इस गैस का। अगर वो 2:1 का रेशियो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ ना कुछ प्रेशर के अंदर गड़बड़ी कर दी है। ये लॉ है, ये ऐसा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ये इस चीज को डिनाई कर जाए। क्लियर होगी बात ये? इसमें कोई डाउट हो किसी को? V का मतलब है वॉल्यूम और T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, assuming that pressure is constant and the system is closed. Pressure is constant, system is closed, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम को क्लोज करना पड़ा। अगर सिस्टम को क्लोज नहीं करते तो गैस एस्केप आउट हो जाती, क्योंकि ये गैसेस के लिए है। अगर क्लोज सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम क्लोज का मतलब है कि उसको किसी बंद चीज में नहीं रखेंगे, वहीं तक गैस एस्केप हो जाएगी तो किस पे प्रेशर लगाओगे? हवा पे प्रेशर लगाते रहो, फिर क्या फायदा? अब हमने अभी देखा V इज इक्वल टू के इंटू टी, तो अगर मैं यहाँ पे V1 इज इक्वल टू के T1 हो गया, V2 इज इक्वल टू के इंटू T2 करता हूँ यहाँ पे, तो पहले उस इक्वेशन में K की वैल्यू क्या आएगी? V1 अपॉन T1, देन K2 की वैल्यू भी क्या आएगी? V2 अपॉन T2। बोथ आर K, both are equal, this K is always constant one,
सो इसका मतलब क्या है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, और इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, V1 into T2 is equal to V2 into T1। So for numericals, always remember, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें ये वाला लॉ यूज करना है। Is that clear? Where V1 and V2 are the volume of gases and T1 and T2 are the temperature of gases। आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं इसके अंदर। एक बैलून लीजिए, बैलून को फिल अप कर लीजिए, देन उसको आइस वाटर में रखेंगे। जैसे इसको आइस वाटर में रखेंगे तो बैलून थोड़ा सा श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी बैलून को अगर आप थोड़ा बॉइलिंग वाटर में, गर्म पानी में मत डाल देना, नहीं तो फूट जाएगा। ये वो फूटेगा क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन प्रेशर। वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, गैस इतनी ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी कि वो उसको फोड़ देगी। और आप उसको थोड़े से गर्म पानी में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद यू विल सी दैट, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ द बैलून, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, इसका और एग्जांपल आपके पास कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आपका गर्मी के अंदर क्या होता है, टायर बर्स्ट हो जाते हैं काफी सारे। गर्मी में टायर बर्स्ट होते हैं बिकॉज वॉल्यूम उसमें इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से भी कई सारे टायर्स हमारे बर्स्ट हो जाते हैं। तो चार्ल्स लॉ हमारी डे टू डे लाइफ में भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ देखते हैं फटाफट। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कल करेंगे, पहले देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड हेंस डेंसिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे एयर एक्सपेंड होगा, डेंसिटी का क्या मतलब है, मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी विल आल्सो डिक्रीज। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर वॉल्यूम इज इक्वल टू m अपॉन d। इट मींस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, and we know that volume is directly proportional to temperature। अभी पहले पढ़ लें बेटा एक बार, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे इससे पता लग गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एयर एक्सपेंड होगी डेंसिटी कम हो जाएगी, इस वजह से जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। सो ऑल गैसेस ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आज के लिए फिलहाल अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद में कल हम इसके